السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف العاقب کا پروگرام جائزہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعیم رضوی۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے ملک عزیز وطن پاکستان کے اندر ہونے والے جو چند واقعات ہیں جو گزشتہ روز ہوئے ہیں۔ پروگرام میں جن چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے جناب حضرت پروفیسر پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے پاکستان میں ہونے والے یہ واقعات جو کہ افسوسناک ہیں اور انتہائی شرمناک ہے۔ جتنا بھی افسوس کیا جائے ان واقعات پر جو ہوئے ہیں گزشتہ روز پاکستان کے اندر، ہم ان واقعات کے حوالے سے بات کریں گے پروفیسر سید محمد فاروق شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، جن واقعات کے اوپر ہم جائزہ لینا مقصود ہے ان کے اندر جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ہے 13 اکتوبر کو ہونے والا کراچی کے اندر ناموس رسالت مارچ کے حوالے سے۔ تو یہ ریاستی دہشت گردی کا ہی ایک واقعہ اس دن پیش آیا کہ حضور کے پورا من دیکھیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اگر اسلحہ سے لیس کوئی لوگ آتے ہیں تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ ان پہ شیلنگ کی جائے، ان پہ فائرنگ کی جائے۔ ایک پورا من نہتے لوگ ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جی اسلامی ملک کے اندر گستاخوں کے حمایتی نہ نکلے، تو ان کے اوپر شیلنگ کرنا، فائرنگ کرنا، کارکنان کو زخمی کر دینا، حتیٰ کہ اس کے اندر ایک ہمارے بھائی وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو اس ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ جی، موقع فراہم کیا آپ نے۔ تو اصل میں جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ریاست اور پاکستانی بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ مسلمان اب مسلمان کو سب سے پہلے پیچھے دیکھنا ہے کہ کیا کہ اگر ایسے واقعات ہوں تو پھر ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، جواب کس طرح دینا چاہیے، گورنمنٹ کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی، عوام کیا کریں۔ بدقسمتی سے یہ سارے دنیاوی تعلیم، عصری علوم تو حاصل کی ہے، دینی تعلیم سے یہ کوسوں دور ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم وہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مان لے، جب تک آپ کی حاکمیت تسلیم نہ کر لے۔ حضور کی حاکمیت سرکار کو بڑا تسلیم جب تک نہیں کریں گے بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ اب اس وقت یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ، شان نزول بھی اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان اور یہودی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمارا یہ فیصلہ کریں۔ تو یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات غور سے سن لیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا اور میرے حق میں کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رکو، عمر ابھی فیصلہ کرتا۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار اٹھائی اور اس مسلمان کی گردن اتار دی، فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ یعنی ایک بندہ اتنی سی گستاخی کرے کہ صرف حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ماورائے عدالت ریاست مدینہ قائم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، لیکن جا کر حضور سے پوچھا نہیں حضور اس کو سزا کیا دینی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جو حضور کی مخالفت کرے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے گردن اتار کے فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ پورا قبیلہ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آیا کہ حضرت عمر نے ہمارا بندہ مار دیا ہے تو اس کا بدل دیں اور بدلہ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، حضور کے فیصلے کو نہیں مانیں گے مومن ہی نہیں رہے، دار اسلام سے خارج۔ اسی طرح اگر انہوں نے ماورائے عدالت یا ایک گستاخ کو دیکھ کر انہیں گستاخی کی اور ایمانی جذبہ بڑھکا اور اس نے مارا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مطابق اور حضور کے مطابق وہ ایک اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بیوی کو شوہر نے مار دیا اور نبینا تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے اور قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعی ایسا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی گستاخ تھی، میں نے اس کو سمجھایا، کانت بی رفیقتن، بہت اچھی تھی، بہت خیال کرتی تھی، 2 بیٹے تھے میرے اس سے، اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بے ادب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتویٰ دیا دمہ حدرن، اس کا خون ضائع ہو گیا ہے۔
कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अब इनको, ये जहल लोग हैं, इनको ABC तो आती, इनको दुनियावी कानून ला वगैरह ये आते हैं, नहीं आता तो कुरान नहीं आता, नहीं आता तो हदीस नहीं आती, नहीं आता तो सहाबा की जिंदगी पर जो अमल करके दिखाए वो नहीं आता। अब हुजूर ने ये हुक्म फरमाकर वाज़े लफ्जों में कि जिसने मेरी गुस्ताखी की है उसका खून ज़ाय है, बिल्कुल बदल नहीं लिया जाएगा, बदला नहीं लिया जाएगा, क़िसास नहीं है। लेकिन अफसोस है कि इस उम्मत पर अब उसने उमरकोट के अंदर वो जो जवान खड़े हुए, उनका जज्बा जो है ना जवान था, और उन्होंने वहां वासिल जहन्नम किया, और उनके खिलाफ पूरी हुकूमत और उनके खिलाफ इदारे और उनके खिलाफ NGOs और सारे खड़े हो गए। फिर उनके हक में तहरीक लब्बैक खड़ी हुई। तो ये इस्लामी ईमानी फरीजा है, बिल्कुल। और उसमें खड़ा, और उनके लिए जो है ना इन लोगों ने क्या कुछ किया, और उसमें हमारा एक बंदा शहीद कर दिया। तो ये अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हम तो, हमारी तो गर्दनें हैं ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। जनाब शाह साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हम इसके अंदर कोई शक नहीं है कि उस गुस्ताख के खून का कोई बदल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। जो मामला है दोनों जानिब, ये उस दिन 2 मार्च निकले, यानी 2 मौक़िफ़ के 2 नज़रिए के लोग निकले, एक गुस्ताख के हिमायती, एक हुजूर के गुलामों के हिमायती निकले ना। तो एक तरफ वो एक डरामाई सी, एक उनको एहतजाज भी करने दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1-2 गिरफ्तारियां भी कर ली गई, ठीक है। उनके ऊपर ना शेलिंग हुई, ना फायरिंग हुई, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी रियासत ही उनको रोक रही है, और यही यहाँ पर रियासत उनको प्रोटोकॉल देकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। दूसरी जानिब वो भी मुहिब्बे वतन है और मुसलमान हैं, निहत्ते हैं, उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। एक तो रियासत का दोहरा म्यार ये हो गया। दूसरा, ये कहाँ पर इस्लाम के अंदर या पाकिस्तान के आइन के अंदर कहाँ पर है कि अपने ही शहरियों के ऊपर जो निहत्ते हों, जो आपके यानी वतन के मुहिब्बीन हो, गद्दारों में से ना हो, रियासत के मुखालिफिन में से नहीं है, उनके ऊपर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम क्या कहता है, पाकिस्तान के आइन क्या कहता है? देखें नईम भाई, हकूक है, राइट्स हैं। आप पुरअमन एहतजाज, किसी आपका कोई कॉज भी है, आप कर सकते हैं। रोडों पर निकलें, आएँ, अपनी बात करें, प्रोटेस्ट करें, ये इजाज़त है। पूरी दुनिया के अंदर इजाज़त है, हमारे मुल्क के अंदर भी इजाज़त है। हर बार लोग निकलते हैं अपने छोटे छोटे मुतालबात के लिए, बिजली के बिलों के लिए और मामलात के लिए, किसी का कोई केस वगैरह है नहीं हो रहा तो उसके लिए निकलते हैं। तो उस वक्त जब असल ख़ास तौर पे अगर हम तहरीक लब्बैक मिलाद का जुलूस भी निकाले तो लाशें उठानी पड़ती। इसी तरह हम लोग जब बाहर, एक हमारा एक मिशन है, और ये लोग असल में इस्तेमाल होते हैं यूरोप के हाथों, अमेरिका के हाथों, यहूदियों के हाथों, और उनकी हिट लिस्ट के अंदर तहरीक लब्बैक है, TLP है, और वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि ये उनके हामी हैं, यार हैं, दोस्त हैं, खाते हैं, पीते हैं। तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, इस्लाम की इज्जत पर, हुर्मत पर खड़ी है और पहरा देती है। कोई बंदा भी यह साबित नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ कोई उनके लिए जराना, दोस्ती, नरमी कुछ है ही नहीं। जिस वक्त वो देखते ही हमारे हाथ में नहीं आते, फिर वो इन लोगों को पैसा दे के इन लोगों को अपने हाथों पर ले आकर हमारा नुकसान करते। इसी तरह जब भी मिसाल के तौर पर अभी ये टारगेट करके मारा गया, हर बार ही ऐसा हुआ है। जब भी मिसाल के तौर पे इनके यहाँ बंदे बंद हो जाएं, ये जुलूस निकालें, ये प्रोटेस्ट करें, ये बाहर निकलें, कुछ नहीं, हमारे ऊपर तेजाब फेंकते, सीधी गोलियां स्ट्रेट फायर करते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर करते हैं। और सब कुछ इनके यहाँ, यानी हमारे लिए जुल्म इन्होंने रवा रखा हुआ है। असल में क्या है, आप और हम और ये जमात अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती है, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है, ये असल में हमें दबाना चाहते हैं। यानी एक यही वजह है कि आप लोग इस्लाम के निज़ाम के नाम ले रहे हैं, उसकी जद्दोजहद करने वाले हैं। इसी वजह से आपके साथ ये रवैया अपना जाता है कि आपके ऊपर सिर्फ एक लाठी चार शेलिंग तक नहीं, कि आपके लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके शहीद कर। पैगाम देना चाहूंगा इसी जुमले में, ये पैगाम ये है कि ये हम अल्हम्दुलिल्लाह न खौफजदा हैं। और आपने देखा जनाजे के ऊपर, बिल्कुल उनके बेटे ने कहा हम 4 भाई हैं, बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 हजूर पर कटने के लिए, दीन पर कटने के लिए तैयार है। ये कितनी बड़ी बात है। वो रो नहीं रहे, सीना नहीं पीट रहे, बालों पर जो है ना बाल नहीं खींच रहे, तमाशा नहीं है, बुज़दिली नहीं है, कितनी मजबूती के साथ 4 भाई हैं, चारों कटने को बड़ी बात है, बहुत बड़ा पैगाम है कुफ्र को। इसलिए मैं कहता हूं इस्लाम के दामन में खुदा ने लचक रखी है।
जितना दबाएंगे उतना उभरेगा। बेशक, ये जितना दबा लें इस्लाम फिर खड़ा होगा, और इस्लाम अपनी ताकत रखता है, बाबा जी फरमा गए, इस्लाम अपनी कुव्वत रखता है। बिल्कुल शाह साहब, मैं मान लेते हैं कि जी आपके ऊपर तो वो इसलिए रियासती ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं कि आप इस्लाम के नाम लेवा हैं, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना आप उसकी जदोजहद कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन नाबीना अफराद लाहौर में अपना एहतजाज करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। मुझे जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर तलबा निकलते हैं, वो किसी भी मामले पे निकलें, तो वहां पर भी ये चीज आती है, आया रियासत की जानिब ये हुक्मरानों की नाअहली है, या फिर ऐसा है कि जो यानी मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाता है वो उस इक़्तिदार के नशे के अंदर इस कदर धुत हो जाता है कि उसके अंदर इतनी या अहलियत नहीं है या इक़्तिदार का नशा है कि वो कोई भी चीज़ उसके ऊपर नागवार गुजरती है जो उसके खिलाफ हो, जो उसकी नाअहलियत को वाज़े कर रही हो। नाबीना लोगों के ऊपर, तलबा के ऊपर, जो कौम का मुस्तकबिल है, उनके ऊपर इस तरह का जुल्म करना, ये सवाल या निशान, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? असल में ना जी, नाकाम लोगों की ये निशानियाँ, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। हमारी कौम से गलती ये हुई है कि नाअहल लोगों को सिलेक्ट किया है, और जब नाअहल लोग ऊपर आ गए हैं तो ये खुद तो नहीं आके बैठे, किसी न किसी ने नीचे से करप्शन कर पैसा दे 5-5 हज़ार पे वोट बिका है। नालियों पर ये लोग बिक गए, मीटरों पर ये लोग बिक गए, गैस के मीटरों पर ये लोग बिक गए। इसी तरह इन लोगों ने ये नीचे से जो है ना ये लालच में आए हैं, और नौकरियों पर, ओहदों पर जो है ना लालच में, कोई अलगज कुछ भी हो सकता। फिर ये ऊपर से ये एक उनकी ताकत, फिर उसी वजीर आजम, उसी से वजीर आला, उसी से ये सदर वगैरह बने। जब ये लोग ऊपर आकर बैठते हैं, ये नाअहल लोग हैं, इस वजह से कभी जो है ना उन पर नाबीना लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं, कभी जनाबे वाला ये स्टूडेंट्स को मारते हैं, कभी क्या ऐसे, इनके पास सलाहियत है ही नहीं। अच्छा शाह साहब, मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे सवाल की जानिब, जिसका जायजा लेना मकसूद है। पंजाब कॉलेज का एक वाकया रूनुमा हुआ और ज़बान ज़द आम है, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कम है, लेकिन फिर भी डिस्कस हो रहा है। तो इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक पंजाब कॉलेज जो एक तालीमी इदारा, मैं ज़ाती राय जो मेरी ये है कि मैं इनको तालीमी इदारे नहीं कहता, मैं कारोबारी इदारे कहता हूँ। एक कारोबारी मरकज़ नाम निहाद तालीमी इदारा है, और एक पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है। उनका मौक़िफ़ ये है कि जी वाक़या हुआ ही नहीं है। जो तलबा हैं और जो तालिबात हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी वाक़या हुआ है। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? नहीं भाई, देखें कि इतना बड़ा यानी जो इशू उठा है, ये ऐसे नहीं उठता। इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को देखा जाएगा वो ये है कि इन्होंने जो धमकियां दी हैं, थ्रेट्स, और इदारे की तरफ से हैं तलबा को, स्टूडेंट को, जब उनसे कहा जाता है कि भाई ये कैसे है, तो वो कहते पहले बोल रहे थे, अब वो कहते हमसे कोई बात ना करे, हमें जो है ना मिसाल हमें ऊपर ना लाया जाए। जी जी। और अगर उनसे वैसे पूछते हैं और कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वैसे बताएं, वो कहते हैं हकायक है, फैक्ट है, हकीकत है। तो इसके ऊपर ये देखना है कि अगर इन्होंने था भी कुछ नहीं, तो फिर ये लोग बिल्कुल इस तरह यानी प्रेशर करना, मारना, और उसके बाद जो है ना ये इतने दिन बाद आज इनकी जो है ना उन्होंने प्रेस रिलीज की है, जी जी, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आके कर रहे हैं तो उस वक्त जब मामला हुआ तो फौरन आकर ऑनलाइन हो जाए, इदारा ऑनलाइन हो जाए कि भाई ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हम जो है वो जो प्रिंसिपल थी वो आके खड़ी होती, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत में कोई मसला है नहीं। अगर ये रोड जाम हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये जैम हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उस वक्त ये बनता था कि ये वो आकर वो कहती मामला ही कोई नहीं है, मैं हाजिर हूं। ये सारे खड़े होकर उस वक्त पैगाम देते, इनके अंदर मसला है 100%। ये थ्रेड्स, ये मार के, ये उनको जख्मी करके, बच्चियों बेटियों को जख्मी करके, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद इन्होंने उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल खामोश रहे। आज आकर प्रेस रिलीज कर रहे, कोई मसला नहीं है, कोई फला। बंदा सच्चा हो और बिल्कुल अगर उसके अंदर कोई मसला नहीं, गिल्टी नहीं है, तो फौरन अपनी वजाहत करता है। ये अपने कैमरे इनके उतार लिए गए, वो पुलिस की कस्टडी में है कैमरे। अच्छा, उसके बावजूद जो जो बच्चे देख रहे थे और जो जो मिसाल के तौर पर उन्होंने शहादत देनी थी, उन बच्चों को इन लोगों ने जबरदस्त डराया, धमकाया,
उनको कहा तुम्हारे नंबर नहीं लगाएंगे, फेल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, फलां कर देंगे, जो है ना निकाल देंगे। सब कुछ क्यों हो रहा है? मकसद यह है कि जिहद इदारे की इज्जत है। भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा के सामने खड़े फरमाया, काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा है। जिस मोमिन की इज्जत काबा से ज्यादा हो, उस बेटी बहन की इज्जत को सिर्फ ये नहीं कि तौहीन अमेज फिक्रों से किसी को बुलाया जाए ना, ये भी हराम है। उसके लिए शरीयत कहती है चौराहे में खड़े करके 80 कोड़े मारो। और इन लोगों ने उस बेटी की इज्जत तार तार की है। और ऐसे जालिम लोग हैं, इज्जत तार करने के बाद फिर जब पुलिस वाले को कहा जाता है कि हां भाई अगर तेरी बेटी यहां होती, कहते हैं मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। जालिम के बच्चों, तुम्हारी बेटी और है। उस हमारे कायदे मोहतरम ने नहीं फरमाया तेरी मेरी की होंगी है, दी ते आखिर दी होंगी। भाई तेरी और मेरी में, मेरी और तेरी में, कौम की बेटी और तुझ में क्या फर्क है? लेकिन अफसोस है कि ऐसे जालिम और जाबिर लोगों को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया है। शाह साहब, इस मामले को हम कह देते हैं कि ये नहीं है, लेकिन जो दीगर वाकयात हो रहे हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी का आप ले लें, लाहौर यूनिवर्सिटी का ले लें, आज भी पंजाब के 2 अजला के अंदर 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो जितने वाकयात जो हुए हैं, जो साबित हुए हैं कि वाकई हुए हैं, उनको इबरत का क्यों निशान नहीं बनाया गया ताकि उसको इबरत पकड़ते हुए इस तरह के वाकयात ना हो? एक तो आपने लाहौर यूनिवर्सिटी का नाम लिया और भावलपुर यूनिवर्सिटी का नाम जी लिया। मेरी बीए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से जी, और मेरी एमए जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से जी, और एमफिल मेरी लाहौर यूनिवर्सिटी से। हम इनके अंदर रहकर हर चीज को जानते हैं। हमारे क्योंकि साथी जो सुनने वाले होंगे मुमकिन है कि वो समझें कि ये दीन, हम दीनी इदारों से भी वाबस्ता लोग हैं, हम दुनियावी इदारों से भी वाबस्ता लोग हैं। उसके बावजूद हम हर चीज अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने इनके लिए पहले कहा कि अपने आप को यहां कंट्रोल कराया जाए, रोका जाए, कि ये जिस वक्त थीसिस होता है, थीसिस के लिए जब वो चेक कराने के लिए इजाजत होती है, वो बेटी, वो बच्ची जिसका थीसिस है, वो प्रोफेसर उसको चाहे तो घर में बुला ले, प्रोफेसर चाहे तो उसको होटल पर बुला ले। ये मेरी अगर ये बात में कमी हो तो मैं इजाजत देता हूं कि कोई बंदा भी मेरे खिलाफ FIR कटवा दे अगर मेरी बात में कोई कमी आ जाए। ये प्रोफेसर को इजाजत है कि वो बच्चियां, बेटियां जो इनके पास पढ़ रही हैं, वो इनको अपने घर में भी बुला सकते हैं। वो इनको अपने पास, फिर बच्चियां मजबूर होती हैं नंबर लगवाने के लिए, उनको नंबर चाहिए, और नंबर लगवाने के लिए उनके आगे का मुस्तकबिल होता है। ये उस्ताद ही नंबर लगा रहे होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर। ये मुच्छ डंडे, ये सारे ऐसे, हमेशा 2 चीजों से गुनाह रुकता है, या अल्लाह का डर हो या फिर कानून हो। अल्लाह का डर भी नहीं है और कानून भी नहीं है। मैं कानून की बात करूंगा ना, कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी की, हम पंजाब कॉलेज इस वाक़े को रहने देते हैं, दीगर जो वाक़यात जो साबित हुए हैं यहाँ तो हम उनके मौक़िफ़ को मान लेते हैं कि जी कोई मामला नहीं हुआ, सिर्फ एक गलत खबर है, ठीक है। जहां पर हुए हैं उन लोगों को इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया गया? वहां पर क्या मामला? देखें जी, वही बात है। असल में इनका सारे का सारा ये एक दूसरे के साथ मिले हुए। अगर पुलिस वाले हैं तो पकड़ कर ले जाते हैं, वो भी इसने तार तार कर देते। वही है, शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, वो शहद की बन जाती हैं। ये कैसा इस निजाम हम पे मुसल्लत हो चुका है और किसी को एहसास ही नहीं है, एहसास ज़िया है ही नहीं। इलीट, अशराफिया और गरीब के लिए कानून अलग है। अगर ये गरीब का मसला हो तो वो बेचारा बहुत कुछ, उसके लिए कानून सारे आ जाते। अमीर का मसला हो रात को अदालत खुल जाती। शाह साहब, मैं दूसरी जानिब बढ़ूंगा। ये जो तालीमी इदारे हैं, नाम निहाद जो कारोबारी मराकिज़ हैं, इनके ऊपर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर हमारे तालीमी निज़ाम की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो म्यूज़िक कंसर्ट है वो कबूल है, डांस की क्लासेस जो हैं वो कबूल हैं, होली के या दीगर जितने भी गैर शरई और गैर इस्लामी और गैर मुअज़्ज़ब जितने भी इवेंट्स हैं वो कबूल है। इन हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कबूल नहीं है। ख़ास तौर पे इस तरह के जो कारोबारी मराकिज़ हैं उनमें देखा जाए तो हिजाब काबिल कबूल नहीं है। तो इस तालीमी निज़ाम के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? असल जंग है नज़रिए की। हमारा जो है ना आइडियालॉजी चेंज हो चुकी है। ये जिस वक्त लॉर्ड मैकाले ने ये तालीम लाजिम कराई थी मुसलमानों के लिए, तो उस वक्त से हमारे नज़रियात बदल गए। ये हर 10-10 साल, 20-20 साल ये जो है ना बदलते 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 ये आगे बड़ा कुछ और है। उसने कहा था कि इनको तालीम के नाम पर नंगा कर देंगे,
तालीम के नाम पर इनके सीनों से कुरान ले लेंगे, इस तालीम के नाम पर इनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत निकाले। आपके सामने आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है जी, इस जो है ना, मुसलमान होना बाद की बात है, इस्लाम बाद की बात है, पहले इंसान होना चाहिए। भाई इंसान के हकूक हैं। अब मुसलमान होना, हुजूर का उम्मती होना कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी शान है, इनको इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं। और इस्लाम ही तो है जिसके जरिए इंसान को हकूक मिल रहे हैं। जी जी। और उसके बाद इन दो, मैंने एक जुमला पहले अर्ज किया था, ए दिलू हो अकरब लित्तक़वा। हमेशा दो चीजों की वजह से बेहतरी आती है, या अल्लाह का डर हो या कानून हो। अगर दिल में तकवा है तो अदल इंसाफ होगा। और दूसरे नंबर पर जब मिसाल के तौर पर ये दुनियावी कानून और ये लाज वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उस पर भी ये लोग फेल हैं, उधर भी फेल है। ना यार मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना हमारे पास दुनियावी मामला ठीक है ना दीनी मामला ठीक है, इसीलिए ये खराबियां आ रही हैं। मैं कहूँगा नजरिए का मसला, असल में नजरिया बेहतर हो जाए तो इंग्लिश पढ़कर भी, यूनिवर्सिटियों में पढ़कर भी, और हर चीज पढ़ के फिर दंदा दस्तार भी पहन लेता है, दाढ़ियां भी रख लेता है। मैं एक माजरत के साथ, हमारे एक भाई, आपको अगर नाम याद है तो इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने जनाब वाला PhD की है, और वो मुकम्मल दस्तार दाढ़ी शरीफ के साथ जो है, अगर नाम याद हो तो आप बताएं। नहीं अच्छा, हमारे तहरीक के कारकुन है, हमारे तहरीक के साथी, उन्होंने जाकर वहां उनमें रहकर भी, मसला क्या है, मसला यह है कि उनके यहां पढ़कर भी अगर एक नजरियाती जमात के साथ वो जुड़े थे। शाह साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप इसके हवाले से रोशनी डालें कि जितने भी हरेसमेंट के केसेस हैं, जितने भी इस तरह के मामलात हैं, इज्जत तार हो रही हैं, इसके असबाब क्या हैं? देखें जी, असल सबब, पीछे फिर वो उसी बात पर हम आ जाएंगे कि असल सबब इसका यही है कि ये लोग आग के साथ पेट्रोल रखेंगे तो धमाका हो जाएगा। जिस वक्त ये इन लोगों ने आसानियां की हैं ना, बेटियों को बाहर निकाला है, बाद में कहते हैं जनाब वो ये हो गया है, हमें धमकाया गया है, और वो बच्चे जनाब मोटरसाइकिलों पर, रक्शे के ऊपर चढ़ गए हैं, और बच्चियां बैठी थी उनके साथ ये कर दिया है, पार्क के अंदर ये हो गया है, यूनिवर्सिटी में ये हो गया। यूनिवर्सिटियों के अंदर तो इजाजत खुद देते हैं, बच्चियां लड़के आपस में एक दूसरे से बगल गिरे, यानी एक निजाम की खराबी, निजाम की खराबी है। असल में जब ये मामला होगा जिसके ऊपर जो है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया। मुराद हाकिम ये वो हिसार में है, मर्द के बाप के हिसार में है, बड़े भाई के हिसार में है, और उसके बाद अपने शौहर के हिसार में है। इसी तरह जब वो आगे चलते तो बेटा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा बेटा जो है ना घर को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हमने इनसे जान छुड़ाई, हमारा जिस्म, हमारी मर्जी, शौहर कोई नहीं, बाप कोई नहीं, किसी का कोई माननी नहीं बात, बाद में कहना हमें फलाने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, निकले ये मामला तो होंगे। जब भी दीन से जान छुड़ाएंगे, इस्लाम से हटेंगे, जिल्लत मुकद्दर बनेगी। इज्जतें बचाना है तो कुरान से जो है ना सबक लें। कुरान ने क्या कहा, वह करना फी बयूतिकुन्ना, औरत घर में रहे। अगर घर से बाहर निकलना है तो क्या है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, पर्दे में आए। ये सीधा से, अगर इन पर्दा रख कर पढ़े, पर्दा रख कर बाहर आए तो कौन किसी को डिस्टर्ब करेगा? शाह साहब, ये तो है ना, मैं एक बात पर नहीं रहूंगा जो मजमूई तौर पे हमारे माशरे के अंदर राइज है कि फ़कत तनकीद करना। मैं तनकीद अपनी जगह है, तनकीद तो ये है कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, जिसकी यानी को एजुकेशन है, दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से ये खराबियां पैदा हो रही हैं। ये तो है तनकीद। तजवीज़ क्या है, हल क्या है? हल ये है कि दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गया उसका ज़माना हो गया। हज़रत उमर कितनी इज्जत पाई है ये हुजूर के दामन से लिपटने के। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। मुझे इजाजत दीजिए, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। तो जब 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है तो उसकी असल वजह क्या थी? हुजूर से सीखा था, दामन मुस्तफ़ा से लिपटे थे। शाह साहब, ये तो है ना मजमूई निज़ाम। मैं तालीमी निज़ाम की बात करता हूँ कि इस्लाम की रोशनी के अंदर तालीमी निज़ाम क्या है, कि अगर कोई खातून तालीम हासिल करना चाहती है तो वो उसका अंदाज क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कि मर्दों के अंदर जो ये मखलूत हमारे यहाँ मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम है तो किस तरह वो मखलूत हासिल कर सकती है या नहीं हासिल कर सकती। मैं सिर्फ फ़कत तालीमी निज़ाम, मैं देखो जी, मैं कोई बंदा बैठा हो कहे जी तालीम पर हमने बात सुनी थी शाह साहब ने या नईम भाई ने, तालीम के मुताले मैंने एक चीज ऐसी पेश कर दी है जिसके अंदर हर चीज ही आ जाएगी। जी,
ایک چیز یعنی تعلیم کو ایجوکیشن ہے، یعنی اگر علیحدہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر پردے میں آ کر پڑھتی ہیں، پڑھانے والا مرد ہے. اب یہ ہم رعایت دے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں. آپ کہیں گے ہمیں ہر بندہ سننے والا ہے، کیا ہم بیٹیوں کو جیل بٹھا دیں؟ وہ کہیں گے مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں نا 100% چاہتے ہیں بہتری، چاہتے ہیں یہ، تو وہ دینی نظام جس طرح حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق چلیں گے. اس کے بعد اگر کو ایجوکیشن ہے اس کو ختم کریں، اس کے بعد اکیلی بیٹیاں وغیرہ ان کا انتظام کیا جائے، پردے کے ساتھ پڑھایا جائے. انشاءاللہ یہ ساری بہتریاں آ جائیں گی، پڑھانے والی بھی بچیاں ہوں. افسوس ہے کہ جب مرد جاتا ہے تو ہاسپٹل کے اندر یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں گئے ہیں، جب مرد گیا ہے تو عورتیں پڑھا رہی ہیں. اب مرد گیا علاج کرانے تو عورتیں کر رہی ہیں. بچیاں ڈیلیوری ہو رہی ہے، بیٹیوں کی ڈیلیوری مرد کر رہے ہیں. بھائی تم نے بچیاں جو پڑھائی ہیں کس لیے پڑھائی ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں کیوں ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر کیوں ہیں؟ وہاں ایک پردے کا مسئلہ تھا، وہاں لے آتے. مسئلہ یہ ہے کہ مومن کی عزت کو تار تار کیا جائے اور وہ گود پاک نہ رہے جس میں صلاح الدین ایوبی نے آنا ہے، وہ گود نہ رہے جس میں محمود غزنوی نے آنا ہے، وہ گود نہ پاک کی جائے تعلیم کے بہانے. اصل میں اسلام سے دوری ہے اور مسلمان کی اصل نسل کشی یہی ہے. بندہ پیدا ہو رہا ہے، افراد بڑھ رہے ہیں، قوم ختم ہو رہی ہے، اسلامی نظریہ ختم ہو رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے، تعلیمی نظام کے ذریعے اور سارے نظام کے ذریعے تباہی مچا رہے ہیں یہ لوگ. اور ہمارے لوگ عقل کے اندھے چپ کر کے چند ٹکوں اور ڈالر اور نوکریوں کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا. شاہ صاحب، ایک موقف پنجاب کالج کا یعنی اس کاروباری ادارے کا اور ایک پنجاب پولیس کا، ایک پنجاب حکومت کا تیسرا موقف ہے کہ جی ایک سیاسی جماعت ہے کہ جو اپنے مسلسل اپنے احتجاج ناکامیوں کا سامنا ہے اس کو، وہ اپنے احتجاج کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات کو اچھال رہی ہے جن کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. تو تحریک لبیک کی طرف سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اس احتجاج کے درمیان جو پولیس کی جانب سے تشدد کے ذریعے جو طلباء زخمی ہوئے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی گرفتار ہو گیا تو اس کی قانونی معاونت کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جو طلباء ہیں ان کے ساتھ ایک تعاون پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ لوگ بھی کہیں سیاسی فائدے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، بالکل. دیکھو جی، حدیث میں ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرے اگر وہ ظالم ہے یا مظلوم. حضور ظالم کا تو ہاتھ روکیں گے، مظلوم کا فرمایا اس کو ظلم نہ کرنے دیں. اسی لیے ہم تحریک لبیک کا یہ بالکل واضح طور پہ یہ ہے کہ ہم میدان میں ہیں خدمت کے طور پہ. ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں زخمی ہیں اور اس صورت پر سعد بھائی اور تحریک لبیک اور ان کے کارکن جو ہے میدان عمل میں ہیں کہ بھئی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہیں اور ہم اور ہیں. اسی لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی تکلیف، کوئی معاملات جس طرح بھی ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اپنا جو ہے نا کریڈٹ لے رہے ہیں تو اس کی اپنی سوچ ہے، بندوں کی سوچ کے اوپر نہیں جایا جا سکتا. خدمت جب بندہ کرتا ہے وہ نظر آتی ہے، اور جب نظر آتی ہے قوم ساتھ کھڑی ہوگی. اصل میں ہمارا محسن کون ہے؟ محسن الحمدللہ ان کی تحریک لبیک ہے، محسن اسلام ہے. اگر یہ آج جڑ گئے یا کل جڑ گئے، انشاءاللہ کامیابی ہمیشہ اسی میں ہی ہے. یعنی آپ کا اپنا سیاسی مقصد نہیں ہے جو آپ طلباء کی معاونت کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تحریک لبیک ہم دیکھتے ہیں ان کے کارکنان، ذمہ داران اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سیاست مقصود نہیں ہے، وہ خدمت مقصود ہے. بھئی سیاست بھی مقصود ہے. اچھا، ہاں جی، سیاست بھی مقصود ہے. کیوں کہ ایسے ظالم لوگ جنہوں نے دکھاوے کر کے، بورڈ لگا کے اور سارا کچھ کر کے، مثال کے طور پر جنہوں نے اپنی طرف جو ہے توجہ دلوائی ہے، جب لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، لوگ غلط بندوں کے ہاتھ چڑھ گئے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، ہم لوگ جو سیاست کریں گے تو ان کا فائدہ کریں گے. اگر یہ ہمارے ساتھ جڑیں گے، ہماری سیاست بھی دین ہے، ہمارا باہر نکلنا، ان کی مدد کرنا بھی دین ہے. ہر بھائی کے لیے خدمت بھی سیاست ہے. خدمت بھی یہ سیاست کے اس ضمن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں ڈالروں کے پیچھے، مال کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے. ہماری اقتدار کے لیے جی وہ کہتے ہیں کہ سیاست بوڑھے مکاراں دے ہاتھ وچ، یہ مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ، خدا اس ملک نو سلامتی رکھے، شیشے دا گھر لوہاراں دے ہاتھ وچ. یہ وہ لوہاروں والی بات یا ایسے لوگوں والی بات نہیں. ہماری سیاست اسلامی سیاست ہے، وہ ہمیشہ عوام کی خیر خواہی ہوتی ہے.
बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं शाह साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा वॉइस ऑफ अल-आकिब के प्रोग्राम जायज़ा के अंदर हमने मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता दिनों, उनके ऊपर उनका शाह साहब के ज़रिए उनका जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर वॉइस ऑफ अल-आकिब का ये प्रोग्राम जो भी मुल्क अज़ीज़ के अंदर वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके अंदर कौम की रहनुमाई हक़ाइक़ के ऊपर, ना कि जिस तरह हमारे यहाँ एक अफसोसनाक एक ट्रेंड है, एक रिवाज है मीडिया चैनल के हवाले से कि वो रेटिंग के लिए, व्यूअरशिप के लिए वो हक़ाइक़ को मसख करके सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए चीज़ें करते हैं। वहाँ पर वॉइस ऑफ अल-आकिब की जानिब से इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि रेटिंग और व्यूअरशिप के लिए नहीं बल्कि कौम की रहनुमाई के लिए इन चीज़ों को जायज़ा लिया जाए कि आखिर कौम इसके अंदर कहाँ पर खड़ी है, उसके क्या हक़ाइक़ हैं, क्या असबाब हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अल्लाह।